शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a beautiful story of class 10th, the 100 dresses. This story is divided into two parts, the 100 dresses 1 part 1 and 100 dresses part 2. Lesson number 5. The story is written by E.L. Ista. Beautifully he describes the story that in our surroundings how we judge the people, how we judge by their wealth, by their position, by their money. Yeah, we judge them by another way कि जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा वेल्थ है, वो आदमी अच्छा है, जो आदमी पुअर है वो आदमी अच्छा नहीं है. Is this the way to judge the people? तो such type of thing happened with a girl, a Polish girl, whose name is Wanda Petronovsky. She was judged by her classmates in a wrong way. They hurt her feelings. Actually, she belongs to a poor family. So always their classmates hurt her feelings. Always they ask the question that how many dresses you have, and at the same time she answered that I have 100 dresses. So when we go through the story on the time we will find it. Before starting the story, we are going to discuss about the Polish community. Here not particularly the Polish community but Polish American community. Polish American community indicates the Polish people now at the present time who are living in America are called Polish American community. Actually what happened in 1808, the first immigrant happens that from Poland to America they came. Few people, not most of the people. Few people came to America from Poland. It was 1608. But a large scale of people in the early 20th century, a large scale of people came to America from Poland. You may know, millions of people came on that time. When at the early of the 20th century. To hear one thing, कि when they came to America, they were recognized, they were identified not by their religion, caste, but they were identified as their origins. That's why they are called the Polish American. You may know, guys, कि in America there is a place, there is a town, Chicago, where most of the Polish American community lived. Rightly, this city is told कि second largest Polish American community lived, second largest in the world. Imagine it. So this is the background of the story. Lots of people, lots of family with
their children came to America. So here in this story, at the starting of the story, you may find that a Polish girl, Wanda Petronovsky, belongs to a poor family. She starts to go to the school of अमेरिकन टाउन में जो स्कूल है, स्कूल में जाना शुरू की. तो यू मे नो गाइज कि here all the students means all the children, their name that like Jacks, Johns in this way, but this girl to them, to the other classmates, seems different. Why is she different? I don't know. They told that her name is Wanda Petronovsky. What type of name is it? In this way, and always they mistreated her. Always they plays with her feelings. Lastly, you may find that Wanda Petronovsky was forced to leave the school. She was so hurted. She was so teased. That's why she left the school. So before leaving the school, she drew 100 designing of dresses. She left all the designing in her previous school. But you know guys, at last in the second part when you go through, on the time you find that she has not such type of angriness towards her classmate. She shows sympathy towards them. So basically about classmates, if we want to talk on the time, two names will come. One is Peggy, most interesting girl, and another is Madeline. She's the friend of Peggy, inseparable friend of Peggy. So what happened in the story, we'll discuss line by line in Hindi. So let's start the story. Okay, in Hindi I will discuss. Today, Wanda Petronovsky was not in her seat. At the starting time में क्या दिखा रहा है कि today Wanda Petronovsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the Arab boys who didn't make good marks sat. The corner of the room where there was most shuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो टुडे एट द प्रेजेंट टाइम, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, किसी को पता नहीं चला कि आज वांडा पेट्रोनोव्स्की एब्सेंट है, क्लास में नहीं आई. इसके बाद बता रहा है कि वांडा पेट्रोनोव्स्की एब्सेंट है. मेनली जो पेगी है और मेडलिन है, इन लोगों को भी पता नहीं है. इसका मतलब क्या है? देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वांडा एंड पेगी एंड मेडी. अच्छा रिश्ता शायद होगा. इसका राइटर ने लिखा कि इन लोगों को भी पता नहीं है, माने इन लोगों के साथ कुछ संबंध है. इसके बाद बता रहा है कि जो वांडा पेट्रोनोव्स्की है, वांडा पेट्रोनोव्स्की कौन क्लासरूम में बैठती है?
13 नंबर क्लास में बैठती है, पीछे वाला जो रो है उस रो में बैठती है जहाँ पर जो रफ बॉयज़ है बैठते हैं, जो कि बहुत ही कम नंबर अचीव करते हैं, जो सब बॉयज़ वो सब के साथ बैठते हैं। वो जगह जो है सबसे डाटी जगह रहता है, मड रहता है, सफलिंग आवाज़ होती है, ये चीज़ बता रहे हैं। माने द एटमोसफियर of that particular place where Wanda Petronovsky seat was very bad। अब क्यों बैठती है, क्या रीजन है, नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो, Wanda didn't sit there because she was rough and noisy। एक चीज देखो कि जितना सारा राफ वॉइस है वो सब राफ वॉइस पीछे बैठ रहा है, वांडा पेट्रोनस्की भी पीछे बैठ रही है। इसका रीजन ये है, जो वांडा पेट्रोनस्की है ये भी रफ है, ये भी नोइजी है, बट नॉट, शी वॉज नॉट रफ, शी वॉज नॉट नोइजी। क्लियर किए राइटर कि वांडा डिडंट सिट दैट बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोइजी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसका ऑपोजिट क्या है, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। शी वॉज वेरी क्वाइट, शांत रहती, रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, रेयरली कुछ बोलते हैं। तो फिर क्यों बैठते हैं, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट डिड शी सेड दैट, क्यों बैठती है। देखो, एंड नोबडी हैड एवर heard her laugh out loud। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all। Sometimes जब कोई लाफिंग के बारे में, कुछ लाफिंग मैटर आता है तो थोड़ा बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। क्रूक्ड जो है माने एक्वार्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल होता है, इसको क्रूक्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं हंसती है, वैसे लाउडली नहीं हंसती है, ये चीज़ बता रहे हैं। तो फिर क्यों बैठते हैं, इस जगह में भी क्लियर किया हुआ नहीं। इसके बाद देखो, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सेट। नोबडी न्यूज, किसी को पता नहीं था। नोबडी न्यूज एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सीट अनलेस इट वाज बिकॉज she came all the way from Boggins Heights। Boggins Heights the place from where Wanda Petronovsky came। जो Boggins Heights है, Boggins Heights जगह के नाम है जिस जगह से वांडा पेट्रोनस्की आती है। एक्चुअली कारण क्या बता रहा है कि Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud, but no one really thought much about Wanda Petronovsky once she sat in the corner of the room। तो रीजन में इस जगह में बता रहा है कि वांडा पेट्रोनस्की जो है वो बॉगिन्स हाइट नाम को जगह से आती है। तो बॉगिन्स हाइट जो है थोड़ा दूर है, पैदल आती है, पैदल आने के टाइम पैर में थोड़ा धूल लग जाता है, तो डाटी रहता है, डाटी रहने के कारण वो पीछे बैठती है। दैट वाज द मेन रीजन that her leg became dirty when he came to school from Boggins Heights। Boggins Heights से जब आते हैं तो फिर डाटी हो जाता है, दैट्स द रीजन, ठीक है। इस जगह में जो वर्ड था देखो, केक्ट था, केक्ट, केक्ट माने कवर्ड, कवर्ड विथ होता है, ये लिख के रख लीजिएगा। इसके बाद देखो, द टाइम व्हेन दे थॉट about Wanda was outside of school hours। देखो, जब स्कूल आवर होता है, स्कूल आवर के टाइम कोई स्टूडेंट्स बात नहीं करते हैं वांडा पेट्रोनस्की के साथ, बट आफ्टर द स्कूल आवर, स्कूल आवर के बाद सब बात करते हैं। सब बात करते हैं मतलब क्या, कि सब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वांडा पेट्रोनस्की को। नो, बात करने का मतलब है वो लोग मजाक करते हैं, दे मेक फन विथ वांडा, ये चीज़ दिखाएगा। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा, सिर्फ उस समय जब वो लोग वांडा के बारे में सोचते हैं, वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर, स्कूल आवर के बाद, कि एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल,
नून टाइम के समय हो सकता है। इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, मॉर्निंग टाइम में स्कूल शुरू से पहले। देखो माने जब जब गैप होता है, जब जब क्लास नहीं होती है, उस समय ये लोग वांडा पेट्रोनस्की के साथ बात करते हैं। क्या है देखो कैसे बात है कि वन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। स्कूल यार्ड में ग्रुप में बटा हुआ रहता है, ये आप लोगों को पता है, ग्रुप रहता है, ग्रुपिंग होता है, ठीक है। 2 ग्रुप या 3 ग्रुप या उससे भी अधिक ग्रुप जब एक दूसरे से बात करके मजाक करते रहते हैं, लाफिंग करते रहते हैं, उस समय क्या होता है, देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। ऐसा कुछ समय आ जाता है जो कि उस समय वो लोग वांडा के लिए इंतजार करते हैं, क्यों, टू मेक फन विथ हर, उसके साथ मजाक करेंगे, ये इसके चलते। द नेक्स्ट डे, ये बेसिक चीज बता रहा है। इसके बाद क्या हुआ देखो, ये मंडे का था कि मंडे वो एब्सेंट थी, ये चीज बता रहे हैं। इसके बाद क्लियर किए कि किसी को पता नहीं चला। इसके बाद बताया कि वांडा जो पर्टिकुलर कौन सा जगह में बैठती है, ठीक है, उस जगह में बाकी सब स्टूडेंट्स कैसा है, वो जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, जिस जगह में बैठती है, कौन सा क्लासरूम में बैठती है, याद रखिएगा 13 नंबर क्लासरूम। क्यों बैठती है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात है कि वो कहाँ से आती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी बात ये है कि सब स्टूडेंट्स कब वांडा के साथ बातचीत करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल इधर। ट्यूसडे भी वांडा स्कूल नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंट अगेन, और किसी को कुछ पता नहीं चला इस दिन भी, ट्यूसडे भी किसी को पता नहीं चला। बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मेडी हु sat down front with other children who got good marks and who didn't trek in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. Peggy was the most popular girl in this school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie was her the reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. आज पता चल रहा है वेडनेसडे को जो है, वेडनेसडे को पता चल रहा है कि वांडा पेट्रोनस्की स्कूल नहीं आई है। किसके द्वारा पता चल रहा है, पेगी और मेडी के द्वारा पता चल रहा है। इस जगह में पेगी और मेडी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो पेगी मेडी है ये दोनों फ्रंट बेंच में बैठती है, क्योंकि इन लोगों का जो फेयर है, इन लोगों का फिट जो है ये डाटी नहीं रहता है। तीसरी बात ये है कि जो फर्स्ट रो में बैठते हैं, फर्स्ट रो में कौन सब स्टूडेंट्स बैठते हैं, इस जगह में लिखा हुआ है कि जो सब स्टूडेंट्स अच्छा नंबर लाते हैं वो सब स्टूडेंट्स बैठते हैं। इसके बाद पार्टिकुलरली पेगी के बारे में है कि वो पेगी जो है एक पॉपुलर गर्ल है स्कूल में। इनके बहुत ही प्रीटी क्लोथ्स है, अच्छा सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, और हेयर जो है कर्ली हेयर है। और जो पेगी है, पेगी की क्लोजेस्ट दोस्त जो है वो है मेडी। तो इन लोगों को आज पता चला कि आज वांडा पेट्रोनस्की स्कूल नहीं आई है। कारण क्या है कि वांडा पेट्रोनस्की के चलते इन लोगों को आज लेट हो गया। वांडा पेट्रोनस्की के चलते इन लोगों को आज लेट हो गया। इसका मतलब ये है कि पेगी एंड मेडी परहैप्स वेटेड फॉर वांडा पेट्रोनस्की स्कूल आने का समय, तो इंतजार थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ही शायद कर लिए थे, फिर भी वांडा पेट्रोनस्की नहीं आए थे, तो ये लोग लेट हो गए। ठीक है, तो इस जगह में एक चीज देखो कि पेगी और मेडी जो है इंतजार क्यों कर रही थी। इतना ज्यादा दोस्ती था ना, ऐसा बात नहीं है। एक तो स्कूल में भी मजाक करते हैं साथ साथ में, कि इंतजार करने का रीजन ये है कि रास्ता में भी मजाक करते हुए आएंगे, ये रीजन था। ऑलवेज दे मेड फन विथ वांडा, ये सोच के। तो आज ये लोग लेट हो गए थे, इसका पता चला कि वांडा पेट्रोनस्की नहीं आए।
इसके बाद क्या है देखो, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वांडा के लिए सिर्फ इंतजार ही करते रहा, टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू फन विद हर, ऑफनली माने नॉट एवरी डे बट ऑफन दे वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वांडा पेट्रोन्स्की के लिए इंतजार करती थी ये दोनों कि थोड़ा मजाक कर लेंगे। ये है एक पार्ट। इसके बाद ओरली कुछ क्वेश्चंस है देखो, वेयर इन द क्लास डज वांडा सीट एंड व्हाई, वांडा कौन क्लास के कौन सी जगह में बैठती है, क्यों बैठती है, ये तो अभी बताए हो जाएगा। 2 नंबर में क्या है, वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती है, वॉगिंसा हाइट्स पता है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज, ये किस तरह का जगह है, इस जगह में क्लियर नहीं है, इसके बाद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद देखो, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैगी नोटिस वांडाज एब्सेंस, वांडाज एब्सेंस को कैसे नोटिस किए, क्योंकि ये लोग लेट हो गए थे ना इंतजार करते हुए। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर, फन विथ हर इसका मतलब क्या होता है, टीज करना उसको, उसको फीलिंग्स को हर्ट करना, ये चीज को होता है। इसके बाद क्या है देखो कि वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 didn't have names like that, they had names easy to say like Thomas, Smith, Ellen। तो क्या बोल रहा है कि वांडा पेट्रोन्स्की ऐसा नाम उनके क्लासरूम में और नहीं था, उस सबके क्लास में नाम था थॉमस, स्मिथ, एलन, ये क्योंकि ये अमेरिकन है और ये पोलिश अमेरिकन है। देयर वाज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एक ही लड़का था जिसका नाम थोड़ा पिकुलर टाइप का इन लोगों को लगता था, उनका नाम था विली बाउंस, ठीक है, ये पिकुलर टाइप का नाम था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे एज दैट पेट्रोन्स्की वाज। जो विली बाउंस जो हो रहा है कि विली बाउंस नेम जो है ये थोड़ा फनी टाइप का लग रहा है, बट इतना फनी नहीं है जितना वांडा पेट्रोन्स्की के नाम में ये सबको फनी लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या है देखो कि वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वांडा पेट्रोन्स्की को ऐसा किसी भी तरह का दोस्त नहीं था, वो स्कूल अकेले आती थी, वो स्कूल अकेले, स्कूल से घर जाती थी अकेले। लेकिन इस जगह में दिखाई दे रहा था कि पेडी और मैगी जो है, पेगी और मेडी जो है इंतजार करते थे। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि वो लोग मजाक करने के लिए इंतजार करते थे, ठीक है। शी ऑलवेज ओर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, ये चीज याद रखोगे कि वो कौन सा ड्रेस पहनती थी, कि ए ब्लू फेडेड ड्रेस, ए फेडेड ब्लू ड्रेस वो हमेशा पहनती थी। डिडंट हैंग राइट माने डिडंट फिट प्रॉपरली, इसको आज सही से फिट नहीं करता था, एक ही ड्रेस पहन के वो हमेशा आती थी। ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि सी वाज ए पुअर गर्ल, ओके। उसके बाद क्या है देखो, इट वॉज क्लीन, जो ड्रेस पहनती थी कि फेडेड ब्लू जो ड्रेस है, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, साफ सुथरा रहता था लेकिन कभी आयरन किया हुआ नहीं रहता था। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, कोई दोस्त नहीं था लेकिन बहुत सारी लड़की इनसे बात करती थी। ये कौन सी बात है, बात करती थी, इसका मतलब ये बता रहा है कि वो लोग मजाक करती थी। Sometimes they surrounded her in the in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the warm hard ground। तो कभी कभी क्या होता था कि ये जो वांडा पेट्रोन्स्की है, वांडा पेट्रोन्स्की एक जगह में खड़ा होके जो छोटी छोटी जो बच्चा है वो सब बच्चा हॉपस्कॉच जो खेलते हैं, हॉपस्कॉच खेल देखते थे वांडा अकेले, तो उस समय बाकी सब गर्ल्स आके इसको घेर लेते थे। घेर के क्या बोलते थे देखो, वांडा Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason। courteous manner माना polite manner, polite manner, बहुत ही polite manner में आके पेगी बोलेगी वांडा, जैसे पेगी बात कर रही है कि मिस मेसन के साथ। मिस मेसन कौन है, मिस मेसन इज द नेम ऑफ ए टीचर, एक टीचर के नाम है,
ठीक है, मैनर एज टॉकिंग टू मिस मेसन वंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, नज माना होता है जेंटल पुश। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से you had hanging up in your closet? फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू हैव इन योर क्लोसेट, तुम्हारे पास कितना ड्रेस है तुम्हारे क्लोसेट में, ये चीज पूछते थे। तो वंडा की रिप्लाई होता था कि 100, वंडा वुड से कि 100 ड्रेसेस है। ए 100 exclaim all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। तो जब सुनते तो सब 100 ड्रेस, बाप रे 100 ड्रेस यार, एक ही ड्रेस पहन के आते, इज इट ट्रू? तो इनक्रेडुअसली मैंने शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, किसी को विश्वास नहीं होता था, यह ए 100 ऑल लाइन अप सेड वंडा, हाँ 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप किया हुआ है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, साइलेंस हो जाते थे क्योंकि पहले ही पता है कि बहुत वो कम बातचीत करते थे। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all color. क्या ये अब सब सिल्क का है? Yes, सब सिल्क का है। अब वेरियस कलर्स में है। वेलवेट टू, वेलवेट भी है कि यह वेलवेट टू। ये 100 ड्रेसेस वंडा वुड रिपीट स्टोलिडली माने नॉट शोइंग एनी फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स के साथ वो नहीं बोलती थी, ठीक है। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। shrieks and peals of laughter माना होता है loud laughter, बहुत ज़्यादा मजाक करते थे, बहुत ज़्यादा हंसते थे। वो थोड़ा जब थोड़ा दूर चले जाते थे तो बहुत ज़्यादा ये लोग हंसते रहते थे। ये 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वाज द ब्लू वन शी ओ एवरी डे। तो 100 ड्रेसेस है, सिर्फ ये तो एक ही ड्रेस पहन के आती थी, वो जो फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस है। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट ए स्टोरी। तो वो क्यों बोलती है, ये कारण ये सब को थोड़ा गुस्सा भी होता था कि ये झूठ क्यों बोलती है, 100 ड्रेसेस क्यों बोलती है। कि हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, शूज कितना है, तो शूज के बारे में जब बताएंगे तो बोलेंगे 60 पेयर ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, 60 पेयर शूज है। सर्कल ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, सब एक साथ होके बोले कि सब ऑल अलाइक, जितना सारा शूज है सब मन एक ही जैसा है। तो ये बोलेंगे क्या, ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइन अप, सब डिफरेंट कलर में लाइन अप किया हुआ है, ये चीज वो बोलती है। Peggy, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave। तो वो सब एक साथ बात करती है, तो बात करने के बाद जब क्लास टाइम हो जाता था सबसे लास्ट में जो है पेगी और मेडी जाते थे वो जगह छोड़ के। Finally, Wanda would move up to the street, her eyes dull and her mouth closed, hissing her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the work to school alone। इसके बाद बता रहा है कि वो वांडा कैसे स्ट्रीट में चले गए, माने कैसे घर जाती है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, ठीक है, कैसे वो घर जाते हैं वांडा, ये चीज़ बता रहे थे। तो आज इतना दूर तक ही, इसके बाद यही जो लेसन है इसी लेसन का एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें बाकी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।